خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ پہلا قدم ہے، منزل تک پہنچنے سے پہلے اس کا تصور ذہن میں لانا لازمی ہوتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے، اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندہ رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست کو جو قدم اٹھایا تھا یہ نقشہ اس کی نفی ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کا حل قوم متحدہ کی قراردادوں میں ہے اور ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے کیونکہ فوجی جدوجہد مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے، جب تک زندہ ہوں پاکستانی قوم کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نقشے میں لائن آف کنٹرول کو واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور یہ نقشہ پہلا قدم ہے۔ آج تاریخ کا اہم ترین دن ہے، پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے نئے نقشے کی تائید کی۔ دوسری جانب الجزیرہ کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1 سال میں بھارت نے کشمیر کو مکمل بند اور اس کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 8 لاکھ فوجیوں کے ساتھ کشمیری عوام کو مسحور کر رکھا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ملک کے سیکولر تشخص کو بگاڑنے کا ذمہ دار ہیں۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مرزا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بالآخر کابینہ کا فیصلہ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نافذ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ممنوع ہے اور یہ ICT کے لیے موضوع ہے، لیکن صوبے بھی اس کو صوبائی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے اپنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار بچوں کی گھریلو مزدوری پر پابندی عائد ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، کشمیریوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہر پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ کی تکالیف کا ہمیں احساس ہے۔ یوم استحصال کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خصوصی پیغام میں کہا کہ کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم سے دنیا بے خبر نہیں، نہتے کشمیری فوجی محاصرے میں دوہرا لاک ڈاؤن جھیلنے پر مجبور ہیں۔ دنیا بھر میں بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم بطور سفیر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بطور وزیر خارجہ آپ کی ترجمانی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کی آواز کو ہر ملک کے دارالخلافہ تک لے کر جاؤں گا۔ غاصبوں کو غلط فہمی ہے کہ جبر سے کشمیریوں کی آواز دبا لیں گے۔ 4 ماہ کے لاک ڈاؤن سے دنیا کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پر اپنا کردار ادا نہیں کیا، جس سے ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ اقوام متحدہ ہمارا نقشہ تسلیم کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں، بھارت میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، وہاں کی حکومت اپنی تاریخ خود مسخ کر رہی ہے۔ بھارت نے نازی قسم کی سیاست اور پیلٹ گن کا استعمال اسرائیل سے سیکھا۔ بھارت کشمیر میں مظالم بڑھا رہا ہے۔ مودی کی حکومت نے حالات خراب کیے، لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوگی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ 1945 میں بنا، جہاں بھارت خود کشمیر کا معاملہ لے کر گیا تھا۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے تو بھارت عالمی میڈیا کو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر مسئلے پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ہٹ درمی کو ختم کرنے اور کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ رگز نیوز سکندر اعظم سے۔ جی سکندر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ہیومن رائٹس واچ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کے جبری تسلط پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے وادی میں آزادی اظہار رائے پر عائد پابندیاں ہٹانے، انٹرنیٹ سروسز بحال کرنے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کا احتساب کرنے اور وادی میں غیر منصفانہ پالیسیوں کو ختم کر کے استحصال کا شکار کشمیریوں کو فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے مسلمانوں کا مسلسل استحصال جاری ہے۔ بھارت نے کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف سخت اور امتیازی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر رکھی ہیں۔
भारत ने एक साल पहले वादी में पाबंदियां लगा कर सैकड़ों बच्चों समेत हज़ारों अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रहा करके सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करे। जी बहुत शुक्रिया सिकंदर हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का यौम एहतसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। यौम एहतसाल के मौका पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि वो अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मोदी बड़ी गलत फहमी में है कि वो चालबाजियों और फौजी जबरो इस्तबदाद से कश्मीरियों को झुका लेगा। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की खामोशी कश्मीरियों को बंदूक उठाने पर मजबूर कर रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सिविल अस्पताल फैसलाबाद के इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट एक बार फिर खराब हो गई। अस्पताल में मरीजों को वार्ड और ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करने के लिए लवाहकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की लिफ्ट गुज़श्ता एक साल से खराब है, जो बार बार मुरम्मत के बाद दोबारा खराब हो जाती है। इमरजेंसी वार्ड के लिफ्ट को 6 माह बंद रहने के बाद 20 रोज कबल कनेक्शन किया गया था, जो 4 रोज कबल दोबारा खराब हो गई। लिफ्ट बंद होने की वजह से मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर रैंप के जरिए पहली और दूसरी मंजिल पर शिफ्ट किया जाता है, जिससे लवाहकीन को सख्त गर्म मौसम में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि लिफ्ट को दोबारा जल्द फंक्शनल करने के लिए कोशिश हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, फैसलाबाद में चीनी की सेंचुरी, इंतजामिया और हुकूमत माफिया को नकेल डालने में नाकाम। मीठी चीनी की कीमत का सुनते ही शहरियों के मुंह फीके पड़ने लगे। चीनी का सरकारी रेट 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में चीनी ब्लैक में सरकारी रेट से 35 रुपए फी किलो महंगी मिल रही है। फैसलाबाद और इसके मुल्हिका इलाकों में ईद के दिनों में चीनी की ब्लैक में फरोख्त की मजीद 10 रुपए किलो में इजाफा हुआ और शहर के करीबी इलाकों में चीनी 95 रुपए, जबकि बड़े स्टोर्स और दही इलाकों में 100 रुपए किलो फरोख्त हुई। चीनी की कीमत में इजाफे को रुकवाने के तमाम हुकूमती ऐलानात सिर्फ दावों तक महदूद हैं। 100 रुपए किलो की चीनी की बोरी का एक्स मिल रेट 8,800 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक जा पहुंची है। शहरी कहते हैं गिरां फरोशों ने जिंदगी मुहाल कर दी है। ट्रेनों की आमदोरफ्त में गैर मामूली ताखीर से तंग मुसाफिर टिकटें रिफंड करवाने लगे। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर और रावलपिंडी से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली ट्रेनें 6 से 10 घंटे ताखीर का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से सख्त गर्मी मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार की बजाय टिकटें रिफंड करवाने लगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से शेड्यूल मुतासिर हुआ था। आपको बताते चलें, मुल्क भर की तरह नौशहरा विरका में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया गया। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नौशहरा विरका की जानिब से भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। तहसील इंतजामिया की जानिब से तमाम महकमों की शमूलियत से कश्मीरियों के हकूक़ के लिए प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नौशहरा विरका पूरी दुनिया की जो इंसानियत है वो भी कश्मीरी भाइयों के साथ है। हम भी उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए जो कश्मीरियों पे पाबंदियां लगाई गई हैं और कश्मीर को इंडिया अपना हिस्सा बनाने के लिए जो गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, प्रेस क्लब रजिस्टर जो है उसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत करती है। और हमारा ये मुतालबा है कि कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक़ दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया की तरह वो भी एक आज़ाद कौम की तरह इस दुनिया के अंदर जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज मुल्क भर में कश्मीरियों के हकूक़ और भारतीय मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, उसी तरह तहसील नौशहरा विरका में भारतीय जारजियत के 365 दिन मुकम्मल न होने पर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नौशहरा विरका की जानिब से भारतीय मुजालिम को आलमी सतह पर उठाने के लिए यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के सदर मियाँ इमरान बशीर, साबका सदर प्रेस क्लब हाफिज कासिम मुस्तफ़ाई और बाकी अराकीन की जानिब से भारतीय जारजियत की भरपूर मजम्मत की गई। उनके अलावा तहसील इंतजामिया की जानिब से कश्मीरियों के हक के
खुद इरादियत के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और रैली भी निकाली गई। रुक करेंगे बलूचिस्तान के शहर सिबी का, जहां पर इंसाफ लेबर विंग की जानिब से रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुंची, जहां पर भारत के खिलाफ शदीद मुजाहरा भी किया और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती भी की। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ ज़हूर अहमद से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं। जी ज़हूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिबी में भी यहाँ पर आज 5 अगस्त योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है और सिबी के जो शहरी हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज रैली निकाली गई है। और यहाँ पर इंसाफ लेबर विंग ज़िला सिबी की जानिब से भी एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली जो है मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई इस टाइम सिबी प्रेस क्लब पर पहुँची है। यहाँ पर जो है कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए भारत के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो मुजाहिरीन है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर चंद एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान भर की तरह आज यहाँ पे हमने इंसाफ लेबर विंग सिबी की तवज्जो से हमने यहाँ पे रैली निकाली, जिसका मेन मकसद यही है कि हम इस रैली के ज़रिए अंधी गूंगी बहरी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी को जगा सकें और उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा है कि 370 आर्टिकल के तहत उसको अपनी असली शक्ल में बहाल किया जाए और 370 आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत दिया जाए। हम अक़वाम आलम से ये भी मुतालबा करते हैं और आलमी इंसानी हकूक़ कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 73 सालों में बिलउमूम और गुज़िश्ता 1 साल में बिलखुसूस इंडिया जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों पर जुल्म सितम कर रहा है, उसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। जहां पर हमारे लाखों की तादाद में कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया, हमारी लाखों की तादाद में कश्मीरी माँ बहनों की असमतरी की गई और पैलेट गन का जो है बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हमारे वहाँ अक्सर आबादी पीनाई से महरूम हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो भारत की जानिब से कश्मीरी भाइयों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।